Yes, students, welcome back to the second series of operating system. Our today's topic would be operating system types. So far we have studied what is operating system. So to recapitulate, we say an operating system is an interface between the user and a machine. It is a collection of software that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs. And this is the most vital component of a computer system, right? Now, before discussing the various types of operating system, there are basically two types of system on the basis of the number of users. Operating system are single user operating system and multi-user operating system. By single user we mean there is only a single user who is operating on that operating system, and in this also single user can be doing a single task. For this we have the Palm operating system, which is used on the Palm handheld computers. This is designed to manage the computer so that the user can effectively do one thing at a time. The task is single here and the user is also single. Next variation comes single user multitask. What operating system we are using today? That is mainly single user multitasking operating system. It is designed with a single user in mind but can deal with many applications running at the same time. Like you can see in this picture, they are listening to a music, some files are being copied, browser is open, and a lot of things are being carried out at a single time by a single user. Examples of such operating systems are Microsoft Windows, Apple's Mac operating system, etc. All these operate in a multitasking mode. Then there comes multi-user operating system. By multiple user we mean when the number of user grows from 1, that is it may be 2 or more users. ऐसे operating system में it allows to access the computer system to the multiple users at the same time. एक ही time पे बहुत सारे users उसी operating system पे काम कर सकते हैं. ये कैसे possible होता है? With the help of networking. कंप्यूटर्स जो भी आपस में कनेक्टेड हैं, एक सर्वर के ऊपर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक्ड हैं. तो इस कंसेप्ट को हम टाइम शेयरिंग सिस्टम्स बोलते हैं. ये टाइम शेयरिंग सिस्टम्स वो मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं जिसमें टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है टाइमिंग और हर एक यूज़र को अपना एक स्लॉट मिलता है. हम आगे की स्लाइड्स में इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे. बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी एक इसी मल्टी यूज़र काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनके एग्जांपल्स हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के VMS, यूनिक्स, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडोज़ आ गया और एप्पल OS आ गया. ये सारे भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में काम करते हैं. अब आता है हमारा मेन कंसेप्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इस कैटेगरी में हम मेनली कुछ सिस्टम्स को पढ़ेंगे जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ वेरी कॉमन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. So students, we'll be discussing each of these operating system in detail one by one. First of all comes the batch processing operating system. अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो सिमिलर नीड्स की जॉब होती हैं उनको एक बैच में इकट्ठा कर दिया जाता है. और जैसे आपकी क्लास में एक बैच होता है स्टूडेंट्स का, BSc या BCA का एक बैच है. BCA फर्स्ट ईयर का बैच अलग है, सेकेंड का अलग है, क्योंकि उन सब की रिक्वायरमेंट एक है. उनकी जो लेक्चर सीरीज़ होती हैं वो एक जैसी होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे. इसी तरीके से जब डिफरेंट जॉब्स एज एन इनपुट आती हैं तो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है बैचेस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेशंस दोज आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन दोज जॉब्स. और ये जॉब्स कैसे रन करती हैं एक के बाद एक. These jobs are processed in the order of submission.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फैशन। इसका मतलब आया जो पहले जॉब आई वो पहले प्रोसेस होगी, उसके बाद उसके ख़त्म होने के बाद ही नेक्स्ट जॉब जो होगी वो प्रोसेस की जाएगी। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है पेरोल रन फॉर अ कंपनी और अ कॉलेज। इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारी सैलरीज बनती हैं एम्प्लॉयज़ की, वो हमें सेम प्रोसेसिंग करनी है सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो इस टाइम क्या किया जाता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो वो हमारे बिल्स जनरेट हो जाते हैं, सैलरी बिल्स, और उनको पेमेंट की जाती है। ऐसे ही गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जब मंथली आते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आपने देखा होगा कि सभी घरों के मंथली जनरेट होते हैं। तो ये कैसे जनरेट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस डायग्राम से ये आपको समझ आ रहा है कि देर आर मल्टीपल यूज़र्स कैटेगरी में देखो बहुत सारी जॉब्स एज एन इनपुट जा रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। मल्टीपल यूज़र्स बैठे हुए हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो अपनी अपनी जॉब्स को इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं। अब आउटपुट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, उन जॉब्स को क्लब करके बैच बना रहा है। अब ये जो बैच होते हैं, इनसे क्या होता है कि हमारे सिस्टम की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है और हमारा जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक बैच का कंप्लीट होने का टाइम, क्योंकि जैसे ही वो जॉब सबमिट हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और वो टर्मिनेट होने के बाद ही बाहर आएगी। तो इससे क्या होगा कि जॉब को अंदर जाने में और बाहर आने में जो स्विचिंग टाइम लगता है वो सेव होता है। वो स्विचिंग टाइम अगर नहीं होगा तो इट मीन्स कि टर्न अराउंड टाइम ओवरऑल हमारा कम हो जाएगा। बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, देयर इज़ अ लैक ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब। अब हमने एज ए यूज़र एक बार अगर जॉब सबमिट कर दी, हम कंप्यूटर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से ये नहीं कह सकते कि इस जॉब को बीच में रोक दो या फिर इस जॉब की प्रायोरिटी चेंज कर दो, हमारी ये वाली जॉब पहले प्रोसेस हो जाए ये बाद में हो जाए। वी डोंट हैव एनी इंट्रैक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही बैचेस बनाता है और अपने आप ही उनको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। CPU is often idle because the speed of the mechanical I/O devices is slower than the CPU. अब इस कंसेप्ट में क्या होता है कि एक जॉब अगर वेटिंग स्टेट में चली गई है, उसको कुछ इनपुट चाहिए या फिर वो आउटपुट कर रही है प्रिंटर पे या मॉनिटर पे। इन द मेन टाइम CPU जो होता है वो खाली होता है, बट वो वेट करता है उसके इनपुट आउटपुट कंप्लीट होने की उस जॉब के, फिर उसको आगे प्रोसेस करता है, तभी वो नेक्स्ट जॉब पे जाएगा जब वो पहली जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, CPU की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रायोरिटी, हम अपने हिसाब से अपनी जॉब्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही इस चीज़ को हैंडल करता है, यूज़र के पास इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास यूज़र के पास कोई कंट्रोल नहीं था। एक जॉब अगर एंटर हो गई है, अगर वो 1 घंटे की जॉब है तो वो पूरी होके ही नेक्स्ट जॉब पे ऑपरेटिंग सिस्टम मूव करेगा। अब नेक्स्ट जॉब हो सकता है कि सिर्फ 2 ही मिनट की थी, उसको 2 मिनट के लिए CPU चाहिए था, लेकिन उसे 1 घंटा वेट करना पड़ा वो 2 मिनट की जॉब को रन करने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इससे अब नेक्स्ट निकल के आता है हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फीचर्स देखते हैं हम। द यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और टू अ प्रोग्राम डायरेक्टली एंड रिसीव्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। इसकी खास बात क्या है कि जैसे ही हमने जॉब सबमिट की वैसे ही तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है अपनी जॉब का, मतलब आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट इन द सेंस कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमें करती है, उसके बाद चाहे दोबारा आगे प्रोसेसिंग चलती रहे। सपोज हमने कोई एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाया है, तो इनपुट लेना है अगर उसने 2 नंबर्स का, तो उसका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो इनपुट लेना है वो इमीडिएटली हमें ऐसा लगता है कि उसने एकदम से हमारी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर दिया, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग क्या होती है कि जितने भी जॉब्स हमारे CPU के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं उन सबको बारी बारी से प्रोसेस किया जाता है। जैसे हमने एक टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम लिया जाता है, 5 सेकेंड्स का टाइम क्वांटम लिया, तो प्रोसेस P1 पहले 5 सेकेंड्स के लिए रन होगा, उसके बाद
उससे वो CPU जो होगा नेक्स्ट जॉब पे मूव करेगा, उसको भी 5 सेकेंड्स का स्लॉट मिलेगा, फिर थर्ड, फोर्थ, 5 एंड सो ऑन। तो इससे क्या होता है कि सभी जॉब्स साइमल्टेनियसली रन करती रहती हैं, और ये जो स्विचिंग होती है एक जॉब से दूसरी जॉब में, इट्स सो फ्रीक्वेंट दैट ईच यूजर इज गिवन द इम्प्रेशन दैट ही इज वर्किंग इंडिविजुअली ऑन दिस CPU। तो उस यूज़र को ऐसा फील आता है कि वो अकेला ही उस CPU पे काम कर रहा है और सिर्फ उसी की जॉब्स रन हो रही हैं, जबकि एक्चुअली में द CPU इज शेयर्ड among many users because this is a kind of a multi user operating system। इसकी एग्जांपल आती है इन अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को देखें तो उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमारी साइमल्टेनियसली रन होती हैं बेस्ड ऑन द टाइम स्लाइस और अ क्वांटम ऑफ अ टाइम वी हैव प्रोवाइडेड टू ईच जॉब। अब इसको देखने के लिए आपको इस डायग्राम से और क्लियर होगा। देयर इज अ सिंगल CPU इन द सेंटर। अब ये CPU इज बीइंग शेयर्ड among the 6 users. You can see in the picture there are 6 users, and this CPU is moving to each user one by one. Here in this picture it is showing that it is CPU is allotted to user 5. After the completion of a time quantum, which may be 5 milliseconds, 10 milliseconds, whatever, the CPU will move to the user 6, and after user 6 gets its time, it will move to the user 1, and this is called the round robin scheduling. This is moving in a round robin fashion. सर्कुलर मोशन में ये मूव करता है, और जब तक कि एक यूज़र का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उसको उस सर्कल में रखता है और उसकी जॉब्स को टाइम एलोकेट करता है। अब इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। सभी यूजर्स को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है साइमल्टेनियसली। अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स CPUs पे काम करते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी उतने होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, एक CPU ही सभी लोग शेयर कर रहे हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर की कॉपी भी एक ही परचेज करनी है। इट रिड्यूसेस CPU आइडियल टाइम। CPU का आइडल टाइम जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में था, अगर CPU वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट के लिए, तो वो क्या करता है, और द मीन टाइम वो नेक्स्ट यूज़र पे शिफ्ट हो जाता है, उसका काम करता है, और जैसे ही उसकी प्रीवियस जॉब उस इनपुट आउटपुट से फ्री हो जाती है, उसको दोबारा से अलॉट हो जाता है CPU। There are some of the disadvantages also of time sharing operating system. First is the problem of reliability. What do you mean by reliability? अगर आपका CPU क्रैश कर जाता है तो सभी यूजर्स का काम शटर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास, और आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। Second, there is a problem of security and integrity of user programs. As all the users are sharing the same memory space, same CPU, there is an issue of protection of their programs from other users. तो हमें यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन या कोई और प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी ताकि कोई दूसरा यूज़र हमारी फाइल्स को एक्सेस ना करे और उसमें चेंजेस ना करे। प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो आपस में यूज़र्स कम्युनिकेट करते हैं तो उनको शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है इन सिस्टम्स में। नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कंसेप्ट है, आप इसके अंदर एक बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेके चलेंगे। एक बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, एक हेड ऑफिस होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इन डिफरेंट सिटीज़। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास हर एक ब्रांच के पास अपना अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन पे वर्क करता है। अगर आप किसी ब्रांच से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपका हेड ऑफिस तक भी इंफॉर्मेशन होगी, वो किसी और बैंक ब्रांच पे भी इंफॉर्मेशन होगी। इट मीन्स रियल टाइम में वो काम कर रहा है, आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई तो आपका डेटा एक जगह स्टोर होता है और वो उसी टाइम उसको अपडेट कर देता है। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ यूजर्स हु आर साइमल्टेनियसली एक्सेसिंग योर सिस्टम। अब क्या होता है, इसमें डेटा प्रोसेसिंग की जो जॉब्स हैं वो भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जैसे लोकल ब्रांच है कोई,
तो लोकल ब्रांच में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो लोकल यूज़र्स की होंगी, तो उसका जो डेटा है वो लोकली भी स्टोर्ड होगा और ग्लोबली तो वो स्टोर्ड होगा ही होगा। तो लोकली स्टोर होने से क्या हो जाएगा कि हमारा डेटा ट्रैफिक कम हो जाएगा और जो यूज़र्स लोकल ब्रांच में अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो वो इजीली अपनी ट्रांजैक्शंस को और रिस्पॉन्स टाइम रियल टाइम में वो काम कर पाएंगे। दो इसमें जो डिफरेंट प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं उस प्रोसेसर्स को हम यहाँ पे साइट्स भी बोल देते हैं, नोड्स भी बोलते हैं, कंप्यूटर्स भी बोलते हैं और टर्मिनल्स भी बोला जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसको हम व्यू करने के लिए कैसा आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास ये जो येलो में स्क्वायर्स दिखाई गए हैं ये हैं डिफरेंट सीपीयूज या प्रोसेसर्स हैं, उनके पास अपनी मेमोरी है, अपनी डिस्क। इनको आप कंसिडर करो कि ये बैंक की ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में खुली हुई हैं। ये सब आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अगर आप एक बैंक ब्रांच में जाते हो बट आपने उसके अंदर आपका अकाउंट नहीं है, इवन दो यू कैन एक्सेस योर अकाउंट फ्रॉम दैट ब्रांच ऑल्सो। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपका जो टाइम लगा और आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, जिस भी ब्रांच में आप हो आप उसी में अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो और ये ग्लोबली कनेक्टेड भी हैं आपस में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या होती है, रिसोर्स शेयरिंग। अब कहीं पे आपका रिसोर्स रखा हुआ है, कहीं पे आपके अकाउंट की डिटेल्स रखी हुई हैं, तो क्या होगा अगर आपके जो लोकल डेस्क है उसके अंदर आपका डेटा नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, उसको किसी और ब्रांच से फेच करके लाता है डेटा को और उसको यूज़ कर सकता है अपने एंड पे। फिर दिस सिस्टम इज़ वेरी रिलायबल। अगर आपका एक ब्रांच का काम नहीं हुआ, मीन्स कोई सीपीयू खराब हो गया आपका, तो बाकी का सिस्टम एज इट इज़ वर्क करता रहेगा, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हॉल्ट नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर। अगर ये सारा काम सिंगल एक कंप्यूटर कर रहा होता एक ही सीपीयू के थ्रू, तो उससे क्या होता कि अगर वो सिस्टम ख़राब हो जाता तो रिलायबिलिटी का इशू आता सबसे पहले, और सेकेंडली देयर वुड बी ह्यूज लोड ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम टू सर्व ऑल द ब्रांचेस। फिर रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डेटा प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसर्स क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन्स भी बहुत क्विकली प्रोसेस हो जाती हैं और हमें क्विक रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। तो दिस इज अबाउट द distributed operating systems. Next come the real time operating system. ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही वर्क करते हैं, ये उसी की एक फर्दर एप्लीकेशन है। रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो टाइम इंटरवल होता है प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करने का, जिसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, response time is the time taken by the system to give you the first output. The time taken by the system to respond to an input and display of the required updated information is termed as response time. तो जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं उसमें रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो बहुत ही क्विक होना चाहिए और ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको ही मिनिमाइज किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। अब क्या है इस डायग्राम में आप देखेंगे रियल टाइम एप्लीकेशंस बनी हुई है हमारी। रियल टाइम एप्लीकेशंस की क्या खासियत होती है, टाइम क्रिटिकल इनपुट आउटपुट, मींस कि आपका टाइम बाउंड होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखो तो हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक जगह जाके अपनी रिजर्वेशन करवा रहे हो टिकट की और अगर ये टाइम जो होगा ये ज़्यादा लगाए तो क्या होगा, अगर सिंगल जो टिकट है वो हो सकता है कि 2 यूज़र्स को अलॉट हो जाए, तो इससे एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सिंगल सीट पे 2 यूज़र्स जो हैं वो उसके ऊपर ऑक्यूपेंसी मिल गई उनको। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो रियल टाइम में काम नहीं कर रहा। अब हमें क्या चाहिए करना है इसमें कि हम जैसे ही उसमें अगर एक टिकट हमारी बुक हो जाती है वैसे ही हमारे डेटाबेस में से एक जो है वो सीट जो है फील्ड दिखाना चाहिए, ताकि किसी दूसरी जगह पे अगर कोई यूज़र उसके ऊपर और टिकट रिजर्व करने आया है तो उसको नेक्स्ट रिमेनिंग टिकट्स में से ही कोई टिकट अलॉट हो। तो इसके लिए हमारे सिस्टम्स के अंदर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनका प्रॉपर नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए और लॉगिन और लॉग आउट डिटेल्स हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए।
इन सबको वर्क करवाने के लिए हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये जो सिस्टम्स होते हैं ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विच इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब अपनी लैब में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैब्स आर कनेक्टेड थ्रू लैन। लैन में क्या यूज़ होता है? सबसे पहले कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्वर पे रन होता है, एंड इट प्रोवाइड्स द सर्वर द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा। सारे के सारे डेटा को वो मैनेज करता है सर्वर। कितने भी यूज़र्स, कितने भी सिस्टम्स लैब में कनेक्टेड होते हैं वो सब उसी सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। वो मैनेज करता है उनकी सिक्योरिटीज़ को, एप्लीकेशंस जो डिफरेंट सिस्टम्स पे रन हो रही है, और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। The main purpose of network operating system is to allow shared file and printer access among multiple computers। अब आपकी लैब में एक प्रिंटर है, ठीक है, एक स्कैनर है, तो उसको अगर हम सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं और सारे सिस्टम्स लैन में हैं, तो क्या होगा कि आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट की कमांड देंगे और सर्वर के ऊपर आपका जो प्रिंटर इंस्टॉल्ड है वो ऑटोमेटिकली उस कमांड को पिक करेगा और आपके हार्ड कॉपीज निकाल के देगा। ऐसे ही कोई फाइल आपकी अगर सर्वर पे स्टोर्ड है तो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए आप अपने सिस्टम से डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कम्युनिकेट करना है, तो इसमें क्या होगा, आप सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर दूसरे सिस्टम का जिसका एड्रेस आपने दिया है उस तक आपकी इंफॉर्मेशन भेजेगा, एंड यू कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस सिस्टम। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन बोलते हैं जिसको। इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क टू कनेक्ट डिफरेंट सिस्टम्स टू द मेन सर्वर। इसके बाद लास्ट आता है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप सब यूज़ करते हैं आजकल मोबाइल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कैन रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस। जैसे ही आप मोबाइल सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप फिर डिफरेंट ऐप्स डालते हो और वो ऐप्स आपकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को फुलफिल करती हैं। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, PDAs, टेबलेट कंप्यूटर्स एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या एग्जांपल्स हैं? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब से आप बहुत ही वाकिफ़ हो। इसके बाद जो एप्पल के जितने भी फ़ोन्स हैं, उन आईफोन्स जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। नोकिया के जितने भी फ़ोन्स हैं उनके पास सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारा विंडोज़ का भी विंडोज़ फ़ोन 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो मोबाइल्स के ऊपर रन करता है, जो विंडोज़ बेस्ड हमारे मोबाइल सिस्टम्स होते हैं। तो इस तरीके से मोबाइल के ऊपर चलाने के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था डिटेल में। Students will discuss the very important topic now, what is the difference between distributed and network operating systems। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जितने भी सिस्टम्स इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं वो सारे टाइटली कपल्ड होते हैं। टाइटली कपल्ड से हमें क्या समझ आता है कि उन सबको हैंडल करता है एक सिंगल कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका मेन गोल क्या रहता है? हाइड एंड मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज। जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके नेटवर्क में हैं उनको यूज़र से हाइड करके रखता है और उन सबको मैनेज रखता है। वाइल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं दोज आर लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड मीन सबके पास अपनी कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, सब अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, बट दे आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एंड दे कैन शेयर द फाइल्स। और इसका मेन काम क्या होता है? लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना रिमोट क्लाइंट्स को। एक लैन के ऊपर, एक वैन के ऊपर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनमें आपस में अगर कोई कनेक्टिविटी चाहिए तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मिडल वेयर एक लेयर होती है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरल पर्पस सर्विसेज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। ये एक थिन कवर है ऑपरेटिंग सिस्टम की ही लेयर का। तो इसका क्या काम होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका डेटा, कैसे आ रहा है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता है।
अब हम आते हैं इनको डिस्टिंग्विश करने में, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा मल्टी प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं और होमोजीनस मल्टी कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। होमोजीनस मल्टी कंप्यूटर्स मीन्स सारे के सारे कंप्यूटर्स के अंदर सेम पावर होती है, सब एक जैसे होते हैं। तो डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो उस केस में मल्टी प्रोसेसर जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें बहुत हाई रहती है, किसी को भी किसी के काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वाइल इन होमोजीनस मल्टी कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंसी उसमें भी हाई रहती है। बट इन केस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मालूम होता है कि हमारे सिस्टम के साथ और कौन से सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। हमारे पास उनके नोड एड्रेसेस होते हैं ताकि अगर हमने किसी सिस्टम के साथ रिमोटली कम्युनिकेट करना है तो हम उसका एड्रेस प्रोवाइड करवा सकें। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ऑल नोड्स, इसके ऊपर अगर हम कहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सभी नोड्स के पास, जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं सभी इंडिविजुअल नोड्स के पास। कॉपीज जो होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी प्रोसेसर के अंदर 1 होती है, मल्टी कंप्यूटर में देयर आर n कॉपीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन केस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो देयर आर n कॉपीज। कम्युनिकेशन का बेस क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क करता है वो शेयर्ड मेमोरी मॉडल और मैसेजेस पासिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। वाइल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर एक रिमोट यूज़र को किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना है, उससे कोई फाइल चाहिए, तो वो फाइल ट्रैवल करती है उसके सिस्टम से अपने सिस्टम के पास। या फिर आप रिमोटली भी कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलनेट किसी दूसरे के सिस्टम पे, वहाँ सेंट्रल सर्वर की हेल्प से आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो जबकि उसकी कॉपी को ट्रांसफ़र नहीं करना। रिसोर्स मैनेजमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्लोबल रहती है, जबकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक नोड पर रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। क्योंकि सभी के पास अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी होती है, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद अपने जो इंडिविजुअल सिस्टम है उसके रिसोर्सेज को मैनेज रखता है। स्केलेबिलिटी से क्या मतलब होता है कि अगर हम सिस्टम को एक्सपैंड करना चाहें या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, ज़्यादा सिस्टम्स उस पर इंस्टॉल करना चाहें और कनेक्ट करना चाहें, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्केलेबिलिटी फुल होती है। चाहे आप कितने भी सिस्टम्स उस नेटवर्क में ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है वो, और अगर मल्टी कंप्यूटर सिस्टम है तो मॉडरेटली स्टेबल है। 1, 2, 4 सिस्टम्स आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें अटैच कर सकते हो एंड इट कैन बी मैनेज्ड। ओपननेस, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ टोटली क्लोज टू द एनवायरनमेंट, वाइल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो इन 2 सीरीज पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? Why it acts as a resource manager? Justify this statement. तो इसमें आपको ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, वो खाली एक इंटरफेस का काम नहीं करता जो अब तक हमें डेफिनेशन इसकी पता थी, बट इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ मेमोरी, वेदर इट इज़ प्रोसेसर, वेदर इट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कुछ भी कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसीलिए इसको रिसोर्स मैनेजर कहते हैं। फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बैच, रियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें आपस में किन्हीं 2 के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है और 3 के बीच में भी आ सकता है, या इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग सिस्टम? ये भी हमने डिस्कस किया है अभी इसी सीरीज में। टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसके अंदर टाइम स्लाइसेस में आपका डिवाइड किया जाता है टाइम, और सभी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली रन होते हैं। एक्सप्लेन फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस में आपके रिसोर्स मैनेजर वाले ही फंक्शंस आ जाएंगे, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने इसी सीरीज में डिस्कस किए हैं। 2 सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल अभी हमने किया था MS-DOS, जो आपका कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियली आए थे वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसके अलावा जो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे एंड्रॉयड, ये भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाइल मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? विंडोज़ के जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं, इवन लाइनक्स ऑल्सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्वेश्चन आ जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
इनमें भी रेफरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड यू कैन राइट दिस वेरी वेल। होप आपको सबको समझ आ गया होगा जो हमने इन 2 सीरीज़ में डिस्कस किया है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। So students, if you have any queries, you can leave a comment. I'll solve your queries and reply you back. So keep learning, stay motivated. Thanks for today.